What should be the answer for this question? First one. So it's B. Yes, it is B. For the second one. So can I do till question number like 9, then I'll answer Yeah. Okay. together. Yes, sir. Okay. Actually, I wanted to write them also, sir. Okay. So question number 4. Then after you have to do the 7, 8, 9, and 5 is also yes. Okay. So you have to do this accordingly. Yes, sir. Done, beta. So just 2 questions now.
Yes, sir, done. Yes. The first answer. So it's B, pulmonary veins. Okay. Second. So I'm a bit confused. All of these? Yes, all of these. Because Okay. minerals and food is being transported from the plasma. So it is the same thing that alcohol will be also transported because the two option is correct. So third one will also be correct. Okay. Third one. Okay, sir. The pale yellow, B. Okay. Fourth one. So capillaries, Yes, capillaries. Fifth one. hydration. Hydration. Very good. Seventh one. Uh, so correct explanation can be A part, upper and lower parts of the body. Okay. Very good. Eighth part. So I don't know this one. Beta, the color of the blood plasma is red yellow. It is correct. It contains corpuscles. Any WBC, RBC? Yes, it is also correct. It is of fluid part of the blood. Yes, it is also correct. So it may be means which is the three is correct. So one is not correct. That is C. It cannot Yes. coagulate. Yes, it can coagulate. Okay. Next, Okay, sir. transpiration and The translocation. no beta. Transpiration and translocation is the transformation of food. Transpiration and root pressure help in transportation of water in plants. Okay. Root pressure. Yes, There are sir. the two types of theories that are responsible that explain well how the water conduction take place in the plant. That is the transpirational theory, and the second one is root pressure theory. So these are the two responsible for the conductions of water and mineral in the plants. Okay. Okay. Next one is Yes, sir. question number 6. Now do the 6, 7, and up to this. Okay, do up to this you have to do this one. Okay, जहां तक आपको दिखाई दे रहा है वहां तक आप करें. Done, beta.
हेलो असीला, हाउ आर यू? आपने बताया भी नहीं आप क्लास में आ गए बेटा। Sir, आई एम आस्किंग कि आपने बताया भी नहीं आप क्लास में आ गए हो। मैं चुपचाप सुन रहा था। डू these questions available on your screen बेटा. okay, sir. Thrombocyte is another name for, do this one. ओके अभी हम लोग को ये भी तो करना था ना, सॉरी सॉरी फॉर दिस वन, कि आप लोग ने फिफ्थ से करना था ना, यहाँ से ये जितनी आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है उसको करिए। ओके ये तो आप कर चुके थे, यहाँ से आपको करना था। ओके सो डू क्वेश्चन नंबर 6, 10, 11, 12, 17, 22, 18 and 30. Sir, sixth one is acetic acid. 6th one is acetic acid. Okay 10th one. So vitamin K. Yes, vitamin K. 11th. So the pH value decreases. The pH value decreases. Yes. When you, this is the simple questions that when you dilute something which is basic in nature, okay, like this one, 9 pH, that is base, and water is 7, okay, and this one is, let's suppose we are diluting someone which is with pH 2. Okay. So when you add the water to it, the pH will shift towards the 7 because आपको पता है कि आप एसिड को भी अगर आप बहुत ज्यादा पानी उसमें ऐड कर देंगे तो वो न्यूट्रल की तरफ जाएगा। इस तरह से बेस में भी अगर आप बहुत ज्यादा पानी ऐड कर देंगे तो वो भी न्यूट्रल की तरफ जाएगा, क्योंकि पानी न्यूट्रल होता है और बेस जो होता है वो वो भी न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब कॉरोसिव नेचर खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बेस में पानी और डालोगे तो और ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ऐसा नहीं, उसकी वैल्यू मतलब वो न्यूट्रल की तरफ आएगा। सो अगर 9 हमारे पास पीएच वैल्यू है किसी की और उसमें आप पानी ऐड करेंगे तो पीएच वैल्यू डिक्रीज करेगी, और अगर हमारे पास 2 किसी का पीएच है और तब उसमें आप पानी डालते हैं तो पीएच वैल्यू इंक्रीज करेगी। ओके गॉट इट? गॉट इट बेटा? for 9 this is decreases, and if it is pH 2 होता है यहाँ पर, फिर हम लोग देते तो फिर हम लोग इंक्रीज करते हैं। ओके गॉट इट? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12. Sir, 12th one is platelets. Okay 17th. सो हम बोलेंगे कि वो बाई डायरेक्शनल होता है। ओके दैट वुड बी मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ओके गॉट इट? Okay, sir. Yes, sir. सो दैट Yes, वुड बी sir. बाई डायरेक्शनल। एंड जो हमारे पास वो होता है जाइलम में जो वाटर कंडक्शन होता है दैट इज यूनि डायरेक्शनल एंड साइडवेज डायरेक्शन। ओके तो इस तरह से होता है। डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द नेक्स्ट वन। अगले आगे क्वेश्चन कीजिए।
Sir, 13th one is option A. Okay, 18th one. Sir, pericardium. C. Pericardium. Okay. 22. Arteries. Yes, arteries. 14th. चलो ब्लड क्लॉटिंग थोड़ा समझ लेते हैं. ओके, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है समझ लेते हैं. सो ब्लड क्लॉटिंग. तनिष्का, मेरे पास हमारी मेल आईडी तो है ना? Yes, sir. ओके. एंड हसीला, योर्स? हैव No, यू एवर sir. मेट मी बेटा? कभी मेल किया आपने मुझे? No, sir. सो मुझे मेल कर देना बेटा. मुझे आपको कुछ ये जो नोट्स वगैरह है ना, ये मुझे आपको सेंड करने ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ जाए. Okay, sir. ओके. सो लेट्स टॉक अबाउट दी. ये सब इसमें लिखा हुआ है, सारे नोट्स इसमें हैं. फिर पहले तो ब्लड क्लॉटिंग के बारे में अगर हम जाने तो ब्लड क्लॉटिंग में हमारे पास जो सबसे पहले प्लेटलेट्स जो होते हैं वो स्मॉल डिस्क लाइक यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, जो कि मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बोन मेरो के अंदर. ओके. हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग और ड्यूरिंग इंजरीज, यानी इंजरीज में मदद करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में. इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जब जब चोट लगती है हमारे, ओके, व्हेन वी गेट इंजर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, when we get injured during that time, vitamin K, okay, and the blood platelets, in the presence of vitamin K, मतलब injured cell and the blood platelets in the presence of vitamin K and calcium ion, Ca2 positive ion, okay, release a special substance called thromboplastin. We named it as thromboplastin. Means, okay, what happens, what is happening here is that, let me explain you that here is, let me explain you where it is. Okay, so let me explain you here that the injured cell, okay, these are the injured cells in the presence of vitamin K and calcium ions, okay, release a special substance called thromboplastin. This is the thromboplastin. Okay, this is helping the it is a form where we can say that this is the one which is initiating the blood clotting. Okay, कैल्शियम आयंस और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होगी. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना था, किसने बनाया था? रिलीज बाय इंजर्ड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स. जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना था, ये प्रोथ्रोम्बिन एक सब्सटेंस होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है. प्रो मतलब पहले, थ्रोम्बिन नाम है सॉल्ट का. तो ये प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देता है? कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन. क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग इतना आसान काम नहीं होना चाहिए. मतलब ब्लड क्लॉटिंग में यू नोज वेरी वेल कि कोई नॉर्मल चीज नहीं है. अगर हमारी बॉडी में एक्सीडेंटली ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो गई तो हम लोग एकदम इंस्टेंटली मर जाएंगे बिकॉज ऑफ दी ट्रांसपोर्टेशन, हार्ट अटैक वगैरह. मतलब क्योंकि ब्लड को सप्लाई, हार्ट को सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी ब्लड की सप्लाई हार्ट में नहीं पहुंचेगी तो हार्ट विल अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगा. सो यहाँ पर भी वही है कि जो प्रोथ्रोम्बिन है हमारे पास, दिस इज द प्रोथ्रोम्बिन. ओके, दिस प्रोथ्रोम्बिन, ये जो इंजर्ड सेल ने थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया था, इसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में. दिस इज फंक्शन एंड दिस इज एन इनएक्टिव फॉर्म. नाउ दिस थ्रोम्बिन, हमारे ब्लड के अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोजन. दिस फाइब्रिनोजन गेट कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन. दिस थ्रोम्बिन इज फॉर्म, जो एक्टिव हो गया था उसकी फॉर्म में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है. तो सबसे पहले इंजर्ड सेल ने क्या रिलीज किया था? थ्रोम्बोप्लास्टिन, पोटेशियम आयन की प्रेजेंस में, सॉरी कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और विटामिन के. उसने क्या किया था? उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया, और थ्रोम्बिन ने क्या किया? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया. और फाइब्रिन क्या होते हैं? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह से, और वो हमें हेल्प करते हैं
ब्लड क्लॉटिंग। ओके, गॉट इट? समझ आया बेटा? गॉट इट? You can explain again. या व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। सबसे पहले हमारे पास मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, हम लोगों ने देखा भी है आगे इसको पूरा प्रॉपर तरीके से कि राइट और नॉट ऑन ब्लड क्लॉटिंग। तो सबसे पहले जो द इंजर्ड सेल्स एंड द ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज अ सब्सटेंस कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन। इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड विटामिन के, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, यानी थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इंजर्ड सेल एंड ब्लड प्लेटलेट्स आर रिलीजिंग अ स्पेशल सब्सटेंस नोन एज थ्रोम्बोप्लास्टिन। And this thromboplastin, in the presence of there is inactive substance present, एक already present होता है ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन बना था, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। प्रो मतलब पहले, थ्रोम्बिन मतलब एक्टिव फॉर्म है, तो प्रोथ्रोम्बिन गेट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। नाउ ये जो थ्रोम्बिन बना है ये एक्टिव हो चुका है। अब एक और की है, मतलब ये डबल की लॉक मैकेनिज्म है एक तरह समझ लो, कि पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, और फिर थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होगा। द फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, जो कि एक्टिव फॉर्म होती है। और फाइब्रिनोजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इनएक्टिव प्रोटीन है, which is already present in the blood, जो ब्लड में पहले से प्रेजेंट होता है, get converted into fibrin, जो कि एक्टिव फॉर्म हो जाएगी। and this the thrombin forms mesh like structure, मतलब एक mesh like structure बना लेता है, ऐसे जाल सा बना लेता है, और उसकी जगह पे जहाँ पे हमें इंजरीज हुई है, और फिर वहां से हमारी ब्लड क्लॉटिंग यानी ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। गॉट इट? गॉट इट बेटा? समझ Yes, आया? sir. यस, दोबारा से समझाऊं? दोबारा से समझाऊं बेटा? सबसे पहले इंजर्ड सेल ने थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज किया, इंजर्ड सेल ने थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, और इस थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। फाइब्रिन जो होते हैं वो फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ओके, तो एक तो अब तुम्हें याद रखना है कि विटामिन के और मिनरल कौन सा होता है, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन। तो ये जरूर याद रखना है आप लोग को कि कौन कौन से विटामिन की प्रेजेंस में ये सब चीजें होती हैं। ओके, तो चलिए अब मुझे बताइए इसका जवाब क्या होगा। So A. यस, नहीं, बी। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन ने कन्वर्ट किया, लेकिन उससे पहले कैल्शियम को थ्रोम्बोप्लास्टिन चाहिए होगा ना, तो कैल्शियम आयन Okay. एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन स्टार्ट दिस वन। ओके, उसके बाद आगे बढ़ती है बात। ओके, उसके बाद एंटीबॉडीज एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय, कौन प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज? So is it A? यस, इट इज लिम्फोसाइट्स। ओके, अब आगे मुझे बताइए, सेल्स फॉर्म्ड इन बोन मेरो इंक्लूड्स, So it's B. यस, आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट्स। द लाइफ स्पैन ऑफ इराइथोसाइट इज, टेल मी द लाइफ स्पैन ऑफ इराइथोसाइट। इराइथोसाइट्स आर आरबीसीज, और आरबीसीज की लाइफ होती है 120 डेज। तो 120 डेज में से इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? So 4 months. यस, इट इज 4 months। क्वेश्चन नंबर 23,
टेल मी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर सॉल्वेंट प्रोसेस। सॉल्वेंट प्रोसेस से हम लोग क्या प्रोसेस क्या क्या बनाते हैं बेटा? वी प्रिपेयर बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। सो आपको मैंने बताया था व्हेन आई वाज टीचिंग यू, तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था कि दैट इज कहाँ गया, हियर वी हैव ओके। सो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कि सॉल्वेंट प्रोसेस में कि हमारे पास सबसे पहले सॉल्ट होता था, अमोनिया, सॉरी NaCl, उसमें हम लोग मिलाते थे किसको, NH, पानी को, वाटर को, ओके। इट बिकम ब्राइन एंड देन वी ऐड अमोनिया टू इट, अमोनिकल ब्राइन, ओके, दिस इज कॉल्ड अमोनिकल ब्राइन। एंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू दिस अमोनिकल ब्राइन, we get ammonia, ammonium chloride plus sodium hydrogen carbonate, okay, this is baking soda that we have studied thoroughly। एक एक चीज को बहुत डिटेल में पढ़ा है, आपके पास नोट्स होंगे, okay। So this is my this one, okay। Now what you need to do here is that this one is a raw material, ठीक है, ये भी मान लेते हैं रॉ मटेरियल, ये भी रॉ मटेरियल। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग को लेकर के हम लोग आते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर नहीं लेकर आते हैं। we take the carbon dioxide as calcium carbonate and when we heat it, it will gives you calcium oxide plus carbon dioxide. This carbon dioxide is being used here, and this sodium calcium oxide is used for recovery of ammonia। इसमें से अमोनिया को वापस निकालने में हम लोग को इसकी जरूरत पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं, इट विल गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जो ये बचा हुआ हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, एंड देन इट विल गिव्स यू कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया, ये अमोनियम क्लोराइड है, सॉरी, NH4Cl, ओके। तो यहाँ पर हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनियम क्लोराइड से, तो ये हमें देता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ओके। सो ये हम लोग को मिलता है। सो ये हमारे पास, तो कैल्शियम कार्बोनेट का लेने का फायदा क्या है रॉ मटेरियल में? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड की रिकवरी, मतलब अमोनिया की रिकवरी, जो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर एज अ बाय प्रोडक्ट बना है, क्योंकि हम लोग को तो बेकिंग सोडा चाहिए या वॉशिंग सोडा भी हम लोग इसी से प्रिपेयर करते हैं। सो बेकिंग सोडा के साथ जो ये बाय प्रोडक्ट बना है अमोनियम क्लोराइड, इससे हम लोग को वापस से अमोनिया निकालनी है। सो उसमें हम लोग सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल देते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और फिर ये वाले का और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर करने पर हम लोग को अमोनिया गैस वापस मिल जाती है, जो कि फर्दर से यूज हो जाएगा। तो हियर अमोनिया, वाटर, दिस वन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। गॉट इट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सो इसे अगर आपने कहीं नहीं कॉपी किया हो तो नोट डाउन कर लो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मुझे आगे जवाब बताइए, क्या जवाब होगा? क्वेश्चन नंबर 16, 21, 16 एंड 21। डन।
No, sir. The coagulations of bloods occur due to, किस वजह से होता है? Sir, option A. Yes, change of fibrinogen to fibrin. अभी तो पढ़ाया था बिल्कुल. Okay, question number 21. बेटा ट्रांसलोकेशन ऑफ एनर्जी यानी एटीपी ट्रांसफर इन किसकी वजह से होता है? शुगर. ट्रांसलोकेशन जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है, तो उसमें शुगर को आपको फ्लैम टिश्यू तक लाने में एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है. उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती. ओके, सो ये याद हो गया आपको? समझ में आ गया? समझ आया बेटा? ओके, सो डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू एनी टॉपिक दैट? कोई ऐसा टॉपिक है जो आप स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हो? नहीं तो फिर मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको. डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू एनी टॉपिक इन साइंस? तनिष्का, डू यू हैव एनी डाउट बेटा? So in the light chapter, it's a bit confusing where they use the formulas like mirror formula and all that. अच्छा ठीक है, चलो आज हम लोग क्वेश्चन करते हैं, लाइट के क्वेश्चन करते हैं. वेट अ मिनट. मिरर फार्मूला. ओके, चलो पहले तो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें ध्यान से अप्लाई करना होगा. तो पहले मैं उनको समझा देता हूँ. ओके, कि कब कौन सा यूज करना है. तो सबसे पहले हमारे पास है बेटा, दैट इज सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग. हमारे लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. दैट इज द फॉर्मूला फॉर द मिरर. ये मिरर के लिए है. और यहाँ पर मैं लेंस के लिए लिखता हूँ, दैट इज दी 1/f इज इक्वल टू 1/v minus 1/u. Magnification here is minus v by u is also equals to height of image upon height of object. Here the magnification is v by u. V by, you can write it like this way. Magnification is v by u and is also equals to height of image upon height of object. Here we have one formula with respect to mirror के लिए हमारे पास होता है f is equals to mu magnification upon m minus 1. ये होता है मिरर के लिए. और f is equals to mu upon 1 minus m. मिरर में m पहले होता है और उसमें बाद में होता है. ये u के रेस्पेक्ट में, याद रखिएगा. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा u v के रेस्पेक्ट में. तो v के रेस्पेक्ट में हमारे पास f is equals to v अपॉन m. v नहीं होता, खाली v होता है. v अपॉन 1 माइनस m. ये दोनों के लिए होता है, बोथ फॉर बोथ, फॉर बोथ लेंस एंड मिरर.
एंड मिरर, दोनों के लिए होता है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग को जो इधर का डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव मेजर करना होता है। जैसे u या इमेज इस तरफ बन रही है तब v की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। इस तरफ का डिस्टेंस जो भी मेजर होगा वो पॉजिटिव होगा। ऊपर का डिस्टेंस जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करनी हो तो पॉजिटिव, या फिर वर्चुअल इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है, अपसाइड होती है तो वो पॉजिटिव। ठीक है, जो नीचे रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं तो उसका डिस्टेंस नेगेटिव में मेजर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, गॉट इट, गॉट इट। Yes, sir. अब ये पहले इन फॉर्मूलों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं। Sir, written. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। हम लोग को क्वेश्चन चाहिए ना। ये ना आपको केस स्टडी से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे चीजें। ओके, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। इट इज नॉट वर्किंग भाई। ओके, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, स्टूडेंट है जिसने फोकस किया है कैंडल, ठीक है, flame on the white screen using a convex lens. He noted down that the position of the candle and the screen under this इस तरह से उसने नोट डाउन किया है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग को जो भी मेजरमेंट दे रखी है वो किसी एक फिक्स पोजीशन से हम लोग को गिवन है। फिक्स पोजीशन से मतलब 26 इज द पोजीशन ऑफ द कैंडल फ्रॉम 0। और 0 अगर हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 0 है तो यहाँ पर 26 पर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 26 है जहाँ पर एक कैंडल रखी हुई है। उसके बाद लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो यहाँ पर रखा हुआ है एंड दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ 50 है यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद हमारे पास पोजीशन ऑफ स्क्रीन, यानी कि यहाँ पर कहीं स्क्रीन होगी क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनाता है तो यहाँ पर कोई स्क्रीन हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको 90 गिवन है। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा बेटा वो लेंस से ही मेजर होता है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वुड बी, और ये नेगेटिव साइड में आ रहा है तो 50 यहाँ से लेके यहाँ तक 50 है, और ये 26 है, दैट वुड बी 50 माइनस 26, दैट वुड बी 24। और क्योंकि साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग को माइनस में 24 लेना है, क्योंकि माइनस में ही क्यों लेंगे हम लोग, क्योंकि माइनस का ही हमारा इस तरफ का डिस्टेंस माइनस में मेजर होता है, उस तरफ का पॉजिटिव में मेजर होता है। सो -24 अब हमारे पास 2 में है। उसके बाद फोकल लेंथ का चलो देख लेते हैं। फोकल लेंथ भी इस लेंस की पॉजिटिव होती है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अगर याद नहीं रहता है कि कौन सी होगी तो आप उसमें एक्स को मेजर कर लीजिए कि एक्स को आप थोड़ा सा घुमाइए तो ये पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, एक्स का साइन, तो दैट इज पॉजिटिव फॉर बोथ लेंस एंड मिरर। अब यहाँ पर अभी भी बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम है। तो पोजीशन ऑफ इमेज आपको निकालनी होगी। पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी वो यहाँ से यहाँ तक की होगी, और वो जब यहाँ से यहाँ तक आपको 50 दे रखा है और पूरा ये 90 दे रखा है तो इतना कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 50 और यहाँ से यहाँ तक 90, तो दैट वुड बी 40। यहाँ से यहाँ तक 40 होगा आपका। अब 40 जो होगा वो उस तरफ का डिस्टेंस तो वो पॉजिटिव 40 होगा, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सही होगा। ओके, गॉट इट, समझ में आया? Yes, sir. ओके, अभी मैं और क्वेश्चंस निकालता हूँ अच्छे अच्छे और फिर आपको कराता हूँ प्रैक्टिस। चलिए, सबसे पहले तो मैं दिक्कत थी इसमें, देखो। अच्छा, शीला ने ये क्वेश्चंस किए थे कि नहीं किए थे? शीला, हमने ये वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे क्या? मैं अभी आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए बेटा? Yes, sir. ओके,
सो इसमें मुझे बताइए कि इसमें सही जवाब क्या होगा। कौन सा वाला क्वेश्चन था वो, ये आप मुझे अपना मेल एड्रेस बता दें तो मेरे पास अभी 11 डीपीपी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल हैं। सो अगर मैं भेज दूंगा तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर तुम्हारे पास तनिष्का की तो डीपीपी है मेरे पास, सॉरी मेल आईडी है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें भी भेज दूँ। ओके, सो फॉर दैट यू नीड टू Okay, sir. send me the mail. Do you have my mail address or should I give it to you No, again? sir. So let you write, please write it please. That is AVESARSH@gmail.com. Okay. Okay. So you have to do the mail on this one. अच्छा, एक क्वेश्चन आप Okay, मुझे sir. इसमें करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 10 आप ट्राई कीजिए तनिष्का, और दोनों ही ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10। अगर नहीं हुआ तो मैं हेल्प करता हूँ, पहले खुद से ट्राई करो। डन बेटा, हुआ? So doing.
डन बेटा और स्टिल डूइंग? या मैं हेल्प करूं? So it's coming 120 centimeter. Yes, it Minus is. 120 Yes, centimeter. yes. It is 120. How will you solve this question? So let's do this one. This is very simple. How will you solve this one? Let me explain you. First, you need to you have been given that कि आपको 2 times magnified image मिलती है जब एक ऑब्जेक्ट को आप कॉन्वेक्स लेंस था कि कॉन्वेक्स मिरर था, चेक कर लेता हूँ एक बार। कॉन्वेक्स मिरर है और जो कि 1/2 डिमिनिश इमेज मिलती है आपको जब ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर की दूर पर रखा हो। ओके, सो लेट्स डू कि हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर है। पहली बात तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज डिमिनिश इमेज बनाता है, ठीक है, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो। सो आपको पता है कि अगर u आपको ऑलवेज नेगेटिव होता है तो यू हैव टू राइट u इज इक्वल्स टू -60 हियर एंड उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है दैट इज मैग्निफिकेशन आपको दी बनी, क्योंकि ये ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है f के और उसके बीच में, तो उसकी मैग्निफिकेशन जो होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव हाफ होगी। सो यू हैव टू राइट इट पॉजिटिव हाफ फॉर द मैग्निफिकेशन, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस की मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में होती है। अगर यही इमेज रियल होती तो -12 हम लोग लेते हैं। तो प्लस इज इंडिकेटिंग द रियल इमेज, सॉरी वर्चुअल इमेज, एंड माइनस इंडिकेट द वर्चुअल इमेज। सो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद आपको फोकल लेंथ निकाल लेनी है। फोकल लेंथ आप निकाल लेंगे तो f इज इक्वल्स टू होता है मिरर के लिए mu अपॉन m-1। सो f की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, m आपको पता है कितना है, हाफ, पॉजिटिव हाफ, और यू कैन राइट इट 0.5 into -60। हाफ को मैं लिख सकता हूँ प्लस 0.5, सो 0.5 into -60 upon here you can write it m is again माइनस का 0.5 -1, so you will get here माइनस का 0.5 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो माइनस का 0.5 आ जाएगा आपके पास। माइनस 0.5 में से माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, और you will get here 0.5 into -60। ओके, तो ये माइनस, ये 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यू विल गेट फोकल लेंथ एज पॉजिटिव फोकल लेंथ आएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। फोकल लेंथ आपके पास 60 आ गई है। नाउ फोकल लेंथ आपको पता है, अब आपको मैग्निफिकेशन चेंज कर दी गई है, तो मैग्निफिकेशन 1/3 हो चुकी है इंटू एम यू, फिर से यही फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। इस बार आपको फोकल लेंथ भी पता है, तो फिर से f इज इक्वल्स टू एम यू अपॉन m -1। इस बार आपको फोकल लेंथ पता है दैट इज, और m आपको गिवन है दैट इज 1/3 इंटू यू आपको निकालना है अपॉन 1/3 -1। तो 1/3 में से आप 1 को माइनस करेंगे नीचे, सो यू विल गेट 3 अपॉन 2, 3 -1, यू विल गेट 2/3 है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2/3 अपॉन u/3, यानी कि ये 1 से u मल्टीप्लाई कर देगा तो u, इस 3 से 3 कैंसिल, you will get 60 here, okay, and this you will get here minus of 2/3 instead of positive, you will get minus of 2/3. So this you will get here, that would be 60 is equals to u upon minus of 2. So this will goes to that side and you will get here u is equals to minus of 120. Minus side is indicating कि आपने negative side यानी इस तरफ कहीं रखना होगा। Okay, got it? Got it, beta? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's do the next question. चलिए मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या जवाब होगा।
बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अपनी मेल आईडी कर देंगे तो मैं आपको सब भेज दूंगा। और यू कैन व्हाट्सएप मी, अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं एट +91 इंडियन नंबर है, उसके बाद 9891590726। यू कैन व्हाट्सएप मी हियर, ओके। So question number 13 is B, 1.21. Yes, 1.21 is the correct option. So you can simply write it कि आपको पता है कि एयर से फ्लिंट ग्लास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सो दैट इज 1.65 आपको गिवन है। फिर एयर से अल्कोहल का जो है दैट इज 1.36 है। आपसे पूछा गया है कि रेस्पेक्ट टू अल्कोहल, यानी अल्कोहल को पहले लिखो और फ्लिंट ग्लास को नीचे लिखो, और आपसे पूछा गया है कितना होगा। सो यू हैव टू राइट इट अल्कोहल इनटू म्यू इनटू ग्लास यहाँ रखिए, और फिर एयर एयर यहाँ कर दीजिए। सो अल्कोहल टू एयर आपको नहीं गिवन है बल्कि एयर टू अल्कोहल गिवन है, तो ये 1 अपॉन में हो जाएगा, 1/1.36 इंटू एयर टू ग्लास आपको दे रखा है 1.65, so that is equals to 1.65 divided by 1.36, so you will get 1.21. So B is the correct option. Okay. Okay. So Yes, sir. कैसी Yes, प्रिपरेशन चल रही है आपके एसएसटी के लिए? ऑल गुड? बताइए फिफ्थ का क्या आंसर होगा बेटा? फिफ्थ का So virtual and magnified. yes, virtual and magnified, because if it is convex lens, so convex lens जो होता है वो अगर वर्चुअल इमेज बनाएगा तो वो मैग्नीफाइड ही होगी, डिमिनिश किसी हाल में नहीं होगी। ओके, ये हम लोग कर चुके हैं, ये भी मैंने बता दिया था तुम्हें, सब हम लोग कर चुके हैं। ओके, सो ध्यान से करके आना बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, and this we have also done, this one suction. Is I'm audible to you? Yes. बेटा यहाँ पर आपकी क्लास नहीं है शायद से, इन विच स्टैंडर्ड यू आर? Yes सर, मैं वो लीव ही कर। ओके ओके ओके, सो हियर वी हैव ट्रिप्सिन एंड दिस वन इज, ये हम लोग कर चुके हैं। ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए सर, क्या होगा? What should be the answer for this question? बेटा टेल मी, देखिए यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट, चलो मान लेते हैं, लेकिन यहाँ से जब ये बाहर निकल रही है तो ये बिल्कुल भी डेविएशन नहीं कर रही है, जबकि वाटर से जैसे ही कोई रे बाहर निकलेगी तो वाटर इज अ डेंसर मीडियम और एयर इज अ रेयरर मीडियम, सो इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस, सी की तरह अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड इन दिस इट इज कमिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये गलत हो गया, इसमें बिल्कुल नहीं मूव कर रही है। इसमें क्या है कि
इसमें जब एयर से वाटर में जा रही है तो इट इज नॉट बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल, तो इसलिए ये गलत हो गया. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, गॉट इट? गॉट इट बेटा? Yes, sir. Okay, so if you have any doubt regarding to any questions, please solve these questions. आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और कॉन्फिडेंट होकर के साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है. सारे केसेस आपको याद होने चाहिए, जो कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखोगे तो कहाँ पर उसकी इमेज बनेगी. तो यू हैव टू मेमोराइज ऑल देम. उसके बाद आप एकदम कॉन्फिडेंट होकर के, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव लेना है, राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव डिस्टेंस लेना है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव एक्सिस में तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड अगर इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो नेगेटिव. उसके साथ साथ मैग्निफिकेशन, अगर वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, रियल इमेज है तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन. अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे और ये सब प्रैक्टिस से आएगा आपको. सो यू हैव टू प्रैक्टिस. ओके बेटा? Okay, sir. So that's all for Thank today. you, sir. We'll meet you in the next class. If you have any doubt, मैं ये सोच रहा था कि अभी